Good afternoon once again. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute doing question number 4. Sleep apnea sufferers means the people who are suffering from sleep apnea. So they are talking about those people, the people who are already suffering from sleep apnea. So sleep apnea, Dr. Samita said such a study cost hundreds of dollars, but federal government allowed a rebate of only $20 to $30 as a even if the patients were insured. Public hospitals were left absorb the cost in their strained budgets. So this particular paragraph is talking about some budgets that basically they want to say government is not supporting. So that is the only thing I can understand. Government is not supporting. So sleep apnea is a disorder associated with snoring, okay, in which the upper airways means upper airway can close off repeatedly during sleeping. So when we breathe, upper airway can close. The patient stirs momentarily to gasp for air and the cycle is repeated throughout the night, resulting in poor quality sleep. So basically, अच्छी sleep नहीं आती because air नहीं मिलती. Air नहीं मिलती means oxygen नहीं मिलती. So if oxygen is not available, how would a person sleep? Result and drowsiness during the day. Or if there would be poor quality sleep, तो drowsiness तो होएगी, तो दिन में तो उसको नींद आएगी, drowsiness in the day. So that is what is the outcome for the sleep sufferers. My question is sleep sufferers. So if I have to answer, I will say sleep sufferers have snoring, they gasp for air, they do not have quality sleep, they have drowsiness. A number of studies have found that such people who are unusually sleepy during the day, they to do poorly on neuropsychiatric testing, which likes driving requires a high degree of concentration. So the people who do not sleep well, so basically we say that they are not good at driving. That is what it wants to say. So the paragraph is all good for me. I can understand the paragraph. That is not a problem that people are bad at driving. Sleep and stop breathing for short intervals during this. Yeah, stop breathing. Yes, they kind of stop breathing. It can be answer, cannot be, but kind of stop breathing. Yes, they do because they are saying that their upper airway gets this. So that is why they momentarily have to grasp for air. So it can be correct. Inability to sleep because they turn and toss all night. So that can also be answered because they have a poor sleep, inability to sleep because they turn and toss all night. Patient stays momentarily and cycle is repeated throughout the night. That is what this is also correct. Yeah, and B seems to be a better option. Because again, stop breathing is right, but again, in दोनों में से मुझे एक को if I have to choose one, then I will say stop breathing is not a very good answer. But हो भी सकता है. मतलब this is tough for me. This is tough for me. क्योंकि short intervals के लिए यहाँ पे दे रखा है. बट यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल नहीं दे रखा, रिपीटेडली दे रखा है. देयर इज नथिंग दैट सेज शॉर्ट, बट मोमेंटरली मींस शॉर्ट. बट जहां पे ये मोमेंटरली वर्ड यूज किया है वहां पे तो एयर को लिया है. सो ए इज द ऑप्शन आई वुड लाइक टू. इनएबिलिटी टू स्लीप बिकॉज दे टर्न एंड टॉस. गैस साइकिल इज रिपीटेड थ्रू रिजल्टिंग इन पुअर, बट ये नहीं दिया हुआ टर्न एंड टॉस ऑल नाइट. आर नॉट यूजुअली स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे. दिस इज particularly wrong. तो सी तो आंसर है ही नहीं. सी तो इज एलिमिनेटेड because sleep apnea sufferers are usually sleepy during the day. Now I am stuck with option A and B. Inability to sleep. The patient stays momentarily, poor quality. दे रखा है, but inability word is a very strong word. And also it is otherwise round. Oh, B cannot be the answer, sorry. Because this is given otherwise. They turn and toss all night because they are unable to sleep. दिस ऑप्शन हैज बीन गिवन वाइस वर्सा. ये गलत जगह पे दे रखा है बिकॉज, यानी कि ऐसा दिया होना चाहिए था दे टर्न एंड टोस ऑल नाइट. वो हिलते रहते हैं, टर्न एंड टोस ऑल नाइट मतलब हिलते रहते हैं क्योंकि वो सो नहीं पाते. इन्होंने क्या रखा है वो सो नहीं पाते इसलिए हिलते रहते हैं. तो आई डोंट थिंक सो दिस शुड बी आंसर. सो आंसर शुड बी ए. अगेन अ टफ वन फॉर मी, सो आई हैव टू टेक योर हेल्प अगेन. आई थिंक इट शुड बी ए बिकॉज दे स्टॉप ब्रीदिंग मोमेंटली. ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे. बी ऑप्शन ठीक नहीं लगा मुझे जब मैंने ध्यान से पढ़ा. क्या आंसर दिया प्लीज? बी आंसर सी सर, सी. अरे सब अलग अलग बोल रहे हो, ऐसे कैसे सर हो? आंसर ए है इसका. हाँ ऐसे करो ना, कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी.
आपने क्या किया वो नहीं पूछ रहा मैं। आई एम सेइंग मैंने ए किया है तो ए ही बन रहा है ना, क्योंकि आप प्लीज समझो, ध्यान से समझो, अब सभी साइलेंट पे डालना, समझो प्लीज। कह रहा है कि जो स्लीप एपनिया सफरर्स होते हैं वो स्लीपी नहीं होते, इसने कहा है स्लीपी होते हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ओके, सो ये तो आंसर नहीं हो सकता। प्लीज साइलेंट कर लेना, कहीं से वॉइस आ रही है मुझे। देन अगर मैं सेकंड ऑप्शन कर रहा हूं कि इनएबिलिटी टू स्लीप बिकॉज दे टर्न एंड टॉस ऑल नाइट, तो ये बाद में ये मतलब टर्न एंड टोस का मतलब है वो हिलते रहते हैं, ऐसे टर्न और टोस का मतलब ये है ना पेशेंट हिलता रहता है क्योंकि वो सो नहीं पाते, ये होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया कि दे आर अनेबल टू स्लीप बिकॉज दे टर्न एंड टोस ऑल नाइट, ये उल्टा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। स्टॉप ब्रीदिंग फॉर इंटरवल्स, तो यहाँ पे दे रखा था स्नोरिंग, जहाँ पे क्लोज ऑफ होता है रिपीटेडली ड्यूरिंग द स्लीप, छोटा छोटा होता रहता है, और पेशेंट स्टिल्स मोमेंटली, तो ये भी दे रखा था, मोमेंट वर्ड भी दे रखा था। पर वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन नहीं है। अगेन ये वाले क्वेश्चंस कभी भी डिसाइड नहीं करते आपकी रीडिंग अच्छी है या बुरी है। हाँ, हमारी मजबूरी है इस रीडिंग को करना, हमारे सिलेबस में है, तो प्लीज इसको समझो कि ये पक्का भार है। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी किया है तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके, कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आप समझ सकते हो तो ये उल्टा दे रखा है। वो हिलते इसलिए हैं क्योंकि वो सो नहीं पाते, और वो सो क्यों नहीं पाते, क्योंकि एयर नहीं मिलती। तो ये पॉइंट डायरेक्टली दे नहीं रखा था, तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, सो आई डिड व्हाट आई फेल्ट इज करेक्ट। लेकिन अगर बाय चांस, और वैसे भी इनएबिलिटी टू स्लीप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, उन्होंने कहा है पुअर क्वालिटी स्लीप, यहाँ पे दे रखा है इनएबिलिटी, तो ये दोनों वर्ड भी मैच नहीं कर रहे, पुअर क्वालिटी और इनएबिलिटी। तो दो तीन रीजन होते हैं क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के, तो इनएबिलिटी टू स्लीप यस, पुअर क्वालिटी स्लीप होते हैं, मतलब एबल टू स्लीप बट विद पुअर क्वालिटी, एक तो ये कारण था, और ये भी कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं दे रखा, तो मेरे को दोनों में से एक करना था, मैंने ए कर दिया और बाय चांस मेरा करेक्ट है। बट आई एम नॉट सेइंग अगर आपने बी किया है तो आपकी रीडिंग वीक है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं दे रखा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट सीखने के लिए कुछ ना कुछ है इसमें भी। ओके, सो Excuse me, sir. Sorry, sir. हाँ, Sorry to interrupt. Sir, I have a doubt because sir, in C option are not usually sleep during the day, and sir, in this who are unusually sleep during the day. So, sir, not usually and unusually both are same. I think so. नहीं नहीं नहीं, दैट इज अदरवाइज राउंड। अब हिंदी में मतलब बताता हूँ मैं आपको। स्टडी ने पाया कि सच पीपल हु आर अनयूजुअली स्लीपी, ये अलग वर्ड दे रखा है, ये कह रहा है जो जो दिन में स्लीपी होते हैं ना, उनका न्यूरोसाइकोट्रिक टेस्टिंग सिस्टम खराब होता है। जो दिन में अनयूजुअली स्लीपी का मतलब है यहाँ पे अनकॉमनली, अनयूजुअली का मतलब है यहाँ पे अनकॉमनली, कि कॉमन लोग हु आर अनयूजुअली स्लीपी का मतलब है कि मतलब बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे अनयूजुअली का मतलब है बहुत ज्यादा नींद आती है जिनको दिन में। सो लोग जो बहुत ही ज्यादा, अनयूजली का मतलब जो अनयूजली स्लीपी होते हैं, कि अनकॉमन है स्लीपी होना ड्यूरिंग द डे, तो ये अनकॉमन वर्ड के लिए यूज हुआ है कि अनकॉमन है स्लीपी ड्यूरिंग द डे, उनका ये होता है। लेकिन यहाँ पे कह रखा है कि स्लीप सफरर जो होते हैं वो आर नॉट यूजली स्लीपी, ये दोनों वर्ड का मतलब ही चेंज हो गया कि वो स्लीपी नहीं होते, पर यहाँ पे तो कह रहा है वो स्लीपी तो होते ही हैं, लेकिन अनयूजुअली स्लीपी होते हैं, कि बहुत ज्यादा स्लीपी होते हैं। यहाँ पे अनयूजुअली का मतलब है बहुत ज्यादा, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे मतलब है स्लीप एपनिया सफरर्स आर नॉट यूजुअली स्लीपी, कि वो स्लीपी नहीं होते, नहीं नहीं, वो तो स्लीपी होते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा होते हैं स्लीपी। मतलब यूजुअली क्या, अनयूजुअली मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दोनों Okay. वर्ड्स का मतलब? Okay, sir. दिस Okay. इज Yes, अदरवाइज, sir. हाँ वो थोड़ा सा ट्रिक कर गया आपको, कोई बात नहीं, इट्स अ क्वेश्चन टू लर्न। बट हाँ, सी तो देखते ही एलिमिनेट कर देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग। कि एक जगह पे कहा है कि जो लोग अनयूजुअली स्लीपी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, कई लोग यूजुअली भी तो स्लीपी होते हैं, हमें भी तो कभी कभी नींद आ जाती है, हम कभी कभी दिन में भी तो लिथार्जिक हो जाते हैं, तो वो यूजुअल स्लीपी हैं। अनयूजली स्लीपी का मतलब जो बहुत ज्यादा अनयूजली स्लीपी है, उनका न्यूरोसाइकेट्रिक खराब हो जाता है। तो स्लीप, जिनको नींद नहीं आ रही रात को, जो ये स्लीप एपनिया सफरर्स हैं, ये अनयूजली स्लीपी मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। और जो सी ऑप्शन है वो उल्टा कह रहा है, आर नॉट यूजली स्लीपी, नहीं नहीं, यूजली स्लीपी होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? Uh, yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऑलराइट, ग्रेट। जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन।